اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ناظرین، آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کڑی آدم اور ابلیس کے بیچ میں جو درار آنے والی چیز، اور ابلیس نے آدم کو اور آدم کی اولاد کو کس طرح سے بہلایا پھسلایا اور اللہ سے دور کر کے جہنم کی طرف لے جانے کی محنت، وہ چیز آج اپن دیکھیں گے۔ جو جنت میں جو دونوں تھے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا تھا کہ اس فلاں درخت کے پاس مت جانا اور اس پھلوں کو نہیں چھونا، تو یہ اللہ کا حکم تھا، پر شیطان نے ہے تو ان کو بہکایا اور پھل کھانے پر مجبور کیا۔ پھر وہاں سے اللہ نے دونوں کو پھٹکار دیا، اور ابلیس نے جو آدم کا سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے، ابلیس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی، شیطان نے اللہ کی نافرمانی کرنے سے، اور آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے دونوں کو تو دنیا میں بھیجنا پڑا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا کہ تم دونوں جاؤ، اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، اور تمہاری جو نسل جو بھی پیدا ہو جائے گی اس میں ہے تو جو خیر کا کام کریں گے واپس ان کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور جو شر کا کام کریں گے انہیں ہے تو جہنم میں سزا دی جائے گی۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں آدم علیہ السلام اترے اور ہے تو اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وہاں سے پھر دنیا سیدھے چلتے گئی، پھر ان کے اولادوں میں سے اللہ نے ہے تو شیس علیہ السلام کو ہے تو نبی بنایا۔ پھر شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام جانے کے بعد پھر شیس علیہ السلام نے ہے تو دعوت دینا شروع کی، اللہ کے وحدانیت کی، توحید کی، شرک بدعت سے دوری کی۔ شیس علیہ السلام تک تو شرک کا شیطان نے ہے تو شروعات نہیں کی تھی، پر جو بھی بگاڑ تھا وہ بگاڑ ہے تو شیطان نے ہے تو شیس علیہ السلام کے قوم میں لایا، ان کی نسل میں لایا، اور پھر مسئلہ بگڑتے بگڑتے پھر اللہ کو ہے تو ادریس علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا پڑا۔ پھر یہ دنیا کا سفر جاری ہوا، پھر نوح علیہ السلام کو بھیجنا پڑا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے دور میں پھر تو امت نوح علیہ السلام کی حد سے بڑھ چکی تھی، بتوں کو پوجنے لگی۔ یہاں سے پھر شیطان کو چانس ملا کہ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو ماننا، بتوں کی عبادت کرنا۔ جو بڑے بڑے بت جو تھے، یعوز، یغوث، ود، نصر، یہ ایسے جو بڑے بڑے بوتا تھے، وہاں سے بتوں کو پوجنا کرنا شروع ہو گیا، اور شیطان کا ہے تو پھر غلبہ آگے بڑھتے بڑھتے جب نوح علیہ السلام میں جانے کے بعد پھر ہود علیہ السلام کو بھیجنا پڑا۔ جب ہود علیہ السلام کا زمانہ ہوتے ہوئے پھر قوم میں اور بگاڑ آیا۔ پھر صالح علیہ السلام کو تو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ پھر صالح علیہ السلام جانے کے بعد پھر اور بگاڑ آتے گیا، پھر دنیا ہے تو اور آگے بڑھتے گئی، اور اس دور میں پھر ہے تو خلیل ابراہیم کو بھیجنا پڑا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہے تو دور کو سنبھالا، پھر شیطان نے اور ہے تو محنت کرتے ہوئے بگاڑ ہے تو دنیا میں بھرپور پیمانے پر پھیلا دیا۔ پھر اللہ نے ہے تو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو نبی بنایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے محنت کی، اس کے بعد پھر اور بگاڑ آیا، دور چلتے گیا، پھر اسحاق علیہ السلام نے تو مورچہ سنبھالا۔ اس کے بعد پھر اور بگاڑ آتے گیا امت میں، پھر لوط علیہ السلام آئے، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو ایسی بدبختی لعنتی تھی کہ ہے تو انہوں نے بہت سارے گناہ، بتوں کو پوجنے کے ساتھ ساتھ ایسے گناہ کیے جو کہ فرشتوں کو غصایا اور اس زمین کو ہی پلٹ ڈالا سزا کے طور پہ۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیا، پھر یہاں سے لوط علیہ السلام نے تو اللہ سے دعا کی، پھر فرشتے اترے اور ہے تو سزا دے دی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آدم علیہ السلام، پھر ابلیس کا لشکر، اور پھر آدم علیہ السلام کی نسل، اور پھر تیسری مخلوق جو ہے فرشتے۔ تو تینوں کا ایک دوسرے کا سمن ہوتے گیا، کیونکہ نبیوں کو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، بگاڑ دور کر دیا،
फरिश्तों को भेजा अजाब दे दिया। इसी तरह से दौर आगे चलते गया। तो फिर लूत अलैहिस्सलाम जाने के बाद फिर और बिगाड़ होते गया उम्मत के अंदर। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने याकूब अलैहिस्सलाम को दुनिया में नबी बनाकर भेजा। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने उस दौर को संभाला। फिर बाद में याकूब अलैहिस्सलाम चले जाने के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में नबी बनाकर भेजा। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने दौर संभाला। फिर ऐसा दौर होते 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 फिर बिगाड़ आया। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम को है तो नबी बनाकर भेजा गया। फिर ये नबियों ने है तो अपनी अपनी उम्मत में मेहनत करके दौर को है तो संभालते हुए है तो उन दौर के इंसानों को अल्लाह से जोड़ने का काम किया। शिर्क और बिदात, शिर्क को हटा के अल्लाह से जोड़ने का काम किया। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम तक ये कड़ी चली। फिर दुनिया में और बिगाड़ होते गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने शोएब अलैहिस्सलाम को तो नबी बनाकर भेजा। फिर दौर और आगे बढ़ता गया। फिर इस दौर में और बिगाड़ आया। फिर मूसा कलीमुल्लाह को भेजा गया। अब नाजरीन, इसके अंदर हर नबी के दौर में क्या क्या शिर्क बिदात हो गए ये तो सबको अब तुमने भी है तो कुरान में देखना, उलमाए हक से जानना, तुमको उसकी जुस्तजू होना। इसलिए क्या क्या बिगाड़ आया ये ज्यादा मैं तफसील से नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिगाड़ जो आ गया, बिगाड़ को सुधारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को भेजा और फरिश्तों के जरिए से तो उनको सजा दिया, अजाब पहुंचाया। तो मैं वो जो बिगाड़ था वो पूरी डिटेल में नहीं जाते हुए आपको एक इशारा दे रहा हूँ कि दुनिया शुरू हो गई, ये स्टार्ट हो गई दुनिया आदम से। अब ऐसा होते होते पूरे नबी अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीच का वक्फा है 500 से 600 साल का। 500 से 600 साल में बिगाड़ इतना हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है तो नबी बनाकर भेजा गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा गया, उसको आज 14 से 1500 साल होने को आ रहे। और होते 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 एक दिन आने वाला है, एंड हो जाने वाली है, यानी एक क़यामत वाली चीज आ जाने वाली है और दुनिया तबाह व बर्बाद हो जानी, जिसको बोला जाता है क़यामत। तो ये मैं इशारा दे रहा हूँ। और आप लोगों ने है तो हर कौम का कुरान में जो भी जिक्र है उसके जरिए से आपको मालूम हो जाएगा कि कौम में बिगाड़ क्या आया और अल्लाह ने उनको सजा क्या दी। और शैतान मलऊन जो शुरू से आदम के औलाद को अल्लाह अब मैं तेरा नहीं होने दूंगा, ये कसम खा के उतरा। और फिर ये कौम को बिगाड़ते बिगाड़ते गया। और अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का एहसान हुआ मेरे मालिक का कि अल्लाह ने हर दौर में अपने नबी को भेज के है तो दीन की समझ बताया, शिर्क बिदात से, गुमराही से दूर करने के लिए नबियों को भेजा। तो मूसा अलैहिस्सलाम की तो कौम बनी इसराइल इतनी ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 40 दिन अपने उम्मत से कट के कोहे तूर पर चले गए थे अल्लाह के हुक्म से। तो 40 दिन में है तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सामरी जादूगर के साथ मिलकर एक बछड़ी की इबादत करना शुरू कर दी थी सिर्फ 40 दिन में। तो ऐसे ऐसे बिगाड़ हर नबी के दौर में है, तो वो सारे मैं नहीं बताऊंगा। अब नूह अलैहिस्सलाम की तो बहुत मतलब बूतों की शुरुआत, बूतों की इबादत करना नूह अलैहिस्सलाम से शुरुआत करा शैतान ने। तो आज तक क्या क्या नहीं करा होगा शैतान ने, अब इसका अंदाजा नहीं है अपने लिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर बिगाड़ आना शुरू हुआ। फिर इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। फिर इलियास अलैहिस्सलाम के बाद उस दौर में बिगाड़ आना शुरू हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने है तो फिर जुल्किफ्ल नाम के एक नबी को भेजा। फिर जुल्किफ्ल जाने के बाद फिर और बिगाड़ होता गया। वैसी बिगाड़ होने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। जब दाऊद अलैहिस्सलाम नबी बनाकर आए और फिर उन्होंने है तो अल्लाह की दीन की दावत दी, शिर्क से पाक किया और फिर दुनिया से चले गए। फिर नस्ल है तो नस्लों में फिर और शैतान ने बिगाड़ लाया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को है तो नबी बनाकर भेजा गया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तो इतने खतरनाक शैतान ने काम किया कि एक दूसरे पर जादू करने वाले अमाल शुरू हो गए। मियाँ बीवी में जादू, मियाँ बीवी में तोड़, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। और सुलेमान अलैहिस्सलाम
तंग आ चुके थे इबलीस और इबलीस के लश्कर से, इतने तंग आ गए थे कि उनको मजबूरन अल्लाह से दुआ करना पड़ी कि अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता कर, ऐसा मुझे है तो एक नबूवत ऐसी अता कर जो कि मैं बनने के बाद मेरे जैसी ताकत किसी नबी को नहीं है ना। मतलब उनका इशारा ऐसा था कि जो इबलीस का लश्कर घर घर में जादू पहुंचा रहा था और इन्हों उस जब वो गुनाह से तंग आ चुके थे कौम के, तो फिर अल्लाह से दुआ करे तो फिर अल्लाह ने ऐसी ताकत दिया उनको कि किसी नबी को फिर उसके बाद वो ताकत नहीं मिल सकी। उसके बाद फिर और इसके होने के बावजूद भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो जादू की चीजें थे, जो भी जादू की चीजें, जादू होता इंसान और इंसान के बीच में जो काम करने वाला है वो इबलीस का लश्कर। तो इबलीस का लश्कर जिस चीजों से काम करते थे उस दौर में, जो भी तावीज वगैरह जो भी चीजें थे उनका कनेक्शन के, तो वो कनेक्शन के चीजें लिए और अपने तख्त के नीचे उसको छुपा दिए और अपने तख्त के नीचे उसको दफना दिए वो जादू की चीजें। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने हर मखलूक के ऊपर है तो ताकत दी थी, तो जिनों को है तो उन्होंने है तो सारे वो चीजें छीन कर उस अपने तख्त के लिए तख्त के नीचे रख दिए और फिर है तो अल्लाह के फजल से वो दौर है तो अच्छा होने लगा। फिर बाद में शैतान ने है तो ख्वाब के जरिए से है तो एक यहूदी आलिम के अंदर ख्वाब में आया और बोला कि देखो सुलेमान जो इतनी सल्तनत संभालता था, हवा पे उसका ताकत थी, हर परिंदों से बात करता था, कुछ भी नहीं था वो। सुलेमान अलैहिस्सलाम रात का उठ के जादू करता था। अगर मेरा यकीन नहीं आ रहा है तो तुम जाकर देखो सुलेमान के तख्त को खोद के, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम अब तो नहीं रहे थे, उम्मत में इतना बिगाड़ आया था। और शैतान ने ख्वाब के जरिए से यहूदी आलिम को बताया और उसके बाद फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को खोदा गया, निकाला गया। तो सच में फिर वो चीजें निकले। पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू को बंद करने के लिए, ये फितनों को खत्म करने के लिए ये तो उसको अपने कब्जे में लेके तख्त के नीचे दफना दिए थे अपने अंडर में, ताकि लोग है तो शांति से, सुकून से, चैन इत्मीनान से रह सके। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद था। पर शैतान कमीना, जो कि शैतान ने क्या किया, फिर कुफ्र किया और ये राज खोलकर फिर जादू और शुरू आज तक अपने दौर में शुरू हुआ। तो बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम जाने के बाद और फिर मामला बिगड़ते गया। फिर अल्लाह तबारक तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम है तो भेजा। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने काम करे। फिर ये सिलसिला दुनिया का ये सफर, अभी मैंने जो लिखा है ये दुनिया है, ये वर्ल्ड दुनिया का सफर होते होते एंड होने वाला है। तो सफर बता रहा हूँ मैं। तो हर सफर में नबियों को भेजा गया है दुनिया के सफर में, और अपने अपने कौम को है तो दावत दी गई और शिर्क से दूरी और अल्लाह की पहचान बताई गई। तो यूनुस अलैहिस्सलाम के बाद मामला बिगड़ा। फिर है तो अल्लाह को है तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजना पड़ा। फिर नबी ये जाने के बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम, फिर ज़करिया के बाद यहिया अलैहिस्सलाम, फिर यहिया अलैहिस्सलाम के बाद अब है फिर ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो नबी थे उनका नाम है ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि ये और इनमें 500 से 600 साल की गैप है। और कुरान में और उलमाए रब्बानी, उलमाए हक जो बताते हैं तो 1,24,000 का जिक्र है। गालिबन 1.25 लाख नबियों को अल्लाह ने भेजा, पर कुरान में और उलमाओं के जरिए से सिर्फ अपने को इतने नबियों का जिक्र कुरान में मिला है। इससे और ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हर एक के इल्म के एतबार से तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मिले उलमाए हक के बारे में, उलमाए हक के जरिए से इतने नबियों का जिक्र कुरान में या उनके जबान से आया, तो मैंने यहाँ जो लिख दिया ये और ये बताया। पर 1.25 लाख नबियों का जिक्र है। अल्लाह तबारक तआला ने शुरू जो दुनिया हो गया, दुनिया का जो सफर है लंबा, यहाँ से दुनिया जब अल्लाह ने बनाया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब उन्हों 14 से 1,500 साल हो चुके हैं। उन्हों जाके अब एंड पे क़यामत होने वाली है। और फिर शैतान ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या क्या उम्मत को गुल खिलाया और किस तरीके से, जिस तरह से ये कौम के, ये नबियों के कौम को बर्बाद किया अल्लाह ने, है तो अल्लाह से तोड़ने के लिए है तो कई नबियों ने कई सालों तक मेहनत की,
मूसा अलैहिस्सलाम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक मेहनत की। नूह अलैहिस्सलाम ने तो 950 साल मेहनत करने के बावजूद भी चंद ही लोग ईमान लेकर आए। तो ये सिलसिला चला, हर नबी ने मेहनत की, हर नबी ने मेहनत की, और चलते चलते सिलसिला अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया। और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी मेहनत की, ऐसी मेहनत की उस कौम पे कि उस कौम का कोई बादशाह होने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी कौम पे अल्लाह ने नबी को भेजा। तो इंशाल्लाह अपन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की जिंदगी, दुनिया का सफर, इस पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब ये जो है ये खाली एक इशारतन है। हर नबी के दौर में क्या क्या शैतान ने गुल खिलाया और कितने हैं तो शिरक कराया, ये पूरा आपको डिटेल कुरान में मिल जाएंगी। कुरान पढ़िए और उलमाए हक से राब्ता करिए, इल्म हासिल करिए। और ये जो दुनिया का सफर है थोड़ा सा समझ के लो, क्योंकि इसका काम तुमको आगे आने वाला है। बात ये चल रही थी 1.25 लाख नबी ने है तो शिर्क को मिटाने के लिए काम किए, पर यहाँ पे जिक्र चंद नबियों का है, चंद अंबिया कराम का है। तो नाजरीन, ये काम तुम समझ के लेना है। ये दुनिया का सफर है। यहाँ से सफर शुरू होते 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होके अब एंड होने वाला है। यानी दुनिया का सफर करीब है एंड का, यानी क़यामत बहुत करीब है। क़यामत होंगी जब होंगी वो अल्लाह को इल्म है, पर अपनी देखना मौत कितने करीब है, उसके हिसाब से अपने को अमल करना है आगे का भी। और फिर मैं बहुत बाकी के और चीज़ें आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।